Hello students, today I have brought for you the practice questions issued by CBSE for the session 2022-23 for English language and literature. So in this video we will be solving the language part because literature and unseen are something whose answer can be different as per your perspective, but if you want we can solve those two also. But today we will be solving the language section, so let's start. So the first question is that read the conversation between a mother and his son and complete the sentence by reporting the mother's reply correctly. Narration. Son is asking mom, how do I become an artist? And mother said that you'll need to learn more about the art you like and practice it every day. Now, is there any question given? Yes. A son asked his mother how he could become an artist. She told him. Means in your answer sheet you will write after she told him. So what would be the answer? That she told him that you will. So it will change into he would. He would need to learn. This verb won't change due to the usage of to before it. So infinitive plus first form of the verb. More about the art you, this will change into he. Like will change into liked. Now this practice is connected to this too, therefore its tense won't change. It, so it would change to that every day. So the sentence would become that she told him that he would need to learn more about the art he liked and practice that every day. Fine. Now the second question. Fill in the blanks by choosing the correct option to complete this advertisement. Now you have to read the question very carefully because half of the understanding is based on the question only. So here the question is that we have to complete this as per the advertisement. Are you looking for more books to read due to popular demand? We blank back our buy one get one free offer next weekend. We brings, this will be totally wrong. अगर यहाँ पे bring होता तो हम एक बार को सोच भी सकते थे, बट bring से तो बिल्कुल ही गलत है. We brought back. अब यहाँ पे brought क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दिया है next weekend. तो next weekend मतलब अगले weekend, मतलब ये पास गलत हो गया और ये पास भी गलत हो गया, तो इसका सही आंसर होगा will bring. Now the next question. आइडेंटिफाई द एरर. बहुत ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं. आइडेंटिफाई द एरर. तो देखते हैं. आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन न्यूज़पेपर हेडलाइन एंड सप्लाई द करेक्शन. क्या है? एथलेटिक स्टार हेल्प्स स्टेट स्टेज अहेड ऑफ कंपटीशन. साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है. क्या? एथलेटिक्स स्टार, ये तो ठीक है. हेल्प्स स्टेट, अब क्योंकि स्टार है सिंगुलर है तो हेल्प्स, ठीक है. हेल्प्स स्टेट स्टेज अहेड ऑफ कॉम्पिटिशन. यहाँ पे स्टेज नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? हमारा स्टे. क्यों होगा? क्योंकि स्टेट को हम क्या लेंगे? प्लूरल में लेते हैं हमेशा, है ना. यहाँ पे हम स्टेट को क्या लेंगे? प्लूरल में लेंगे. सो एथलेटिक स्टार हेल्प्स स्टेट स्टे अहेड ऑफ कॉम्पिटिशन. तो यहाँ पे एरर हो जाएगा आपका स्टेज और करेक्शन हो जाएगा आपका स्टे. नेक्स्ट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट. Select the correct option to fill in the blanks for given line from a doorway sign. Doorway sign is कि जो ऐसे डोर पे लगे नहीं रहते हैं, कभी आप रेस्टोरेंट्स वगैरह पे जाएं तो वहाँ पे भी लगे रहते हैं. क्या लिखा है? Caution, you dash not enter. Only employees are allowed beyond this point. तो कभी आपने देखा होगा ऐसे कि कहीं किसी मॉल वगैरह में आपने देखा होगा, किसी रेस्टोरेंट वगैरह में, कि एक डोर होता है जिसके अंदर किचन होता है या जिसके अंदर कुछ स्टोरेज हाउस होता है, तो वहाँ पे लोगों का आना मना होता है. तो वहाँ पे ऐसे दिया रहता है कि कॉशन, ओनली एम्प्लॉयज़ आर अलाउड टू एंटर. तो वहीं पे दिया है, उसी के कॉन्टेक्स्ट में दिया है. सो द फर्स्ट ऑप्शन इज़ यू नीड नॉट एंटर. अब नीड नॉट एंटर इज़ समथिंग लाइक कि आप एडवाइस दे रहे हो कि आपको अंदर आने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे ज़रूरत से है, लेकिन यहाँ पे नीड नहीं जाएगा क्योंकि कॉशन लिखा है, मतलब कोई हम साइन दिखा रहे हैं. मस्ट को हम कंसिडर करके रखते हैं, लेकिन पहले बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं. कुड, यू कुड नॉट एंटर. अब क्योंकि यहाँ पे एक ये साइन दे रहा है तो यू कुड नॉट एंटर इज़ टोटली अब्सर्ड. क्योंकि एक तो पहली बात कि कुड पास्ट में होता है तो भी रिजेक्ट हो गया, और कुड इज़ टू शो एन एबिलिटी. यहाँ पे तो हम कोई एबिलिटी नहीं दिखा रहे हैं. एंड द लास्ट ऑप्शन इज़ माइट. यू माइट नॉट एंटर. माइट इज़ यूज्ड फॉर प्रोबेबिलिटी, एंड यहाँ पे भी हम कोई प्रोबेबिलिटी नहीं दिखा रहे हैं.
सो द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी मस्ट. मस्ट से क्या मतलब है कि आपको एंटर नहीं करना है. यहाँ पे अगर शुड भी होता तो भी मस्ट ही जाता. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको स्ट्रिक्टली कहा जा रहा है कि आपको एंटर नहीं करना है. ना आपको कोई चॉइस दी जा रही है, ना आपकी कोई एबिलिटी, ना कोई प्रोबेबिलिटी, और या आपकी कोई ज़रूरत, कोई नीड बताई जा रही है कि आप एंटर कर सकते हैं या नहीं. देयर इज़ नो चॉइस गिवन टू यू. फाइन. तो यहाँ पे जाएगा मस्ट. Fill in the blank by using the correct form of the word in the bracket for the given portion of a diary entry. Dear diary, अब आप 9th में डायरी करते थे तो चलिए देखते हैं क्या है. Dear diary, today I saw the most beautiful sunrise over the ocean. I wish I could dash painting it truly capture and preserve the beauty I witnessed. तो ये तो बहुत obvious है. डैश की जगह पे आपको भरना है तो पेंटिंग का कोई फॉर्म भरना है. पेंटिंग जो आपका वर्क दिया गया है तो आई कुड इज़ अ मॉडल, और मॉडल के साथ हमेशा क्या लगता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब. तो सिंस यहाँ पे कुड है, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? पेंट. सो टुडे आई सॉ द मोस्ट ब्यूटीफुल सनराइज ओवर द ओशन. आई विश आई कुड पेंट इट. मैं चाहती हूँ कि काश मैं उसे पेंट कर पाती. टू ट्रूली कैप्चर एंड प्रिजर्व द ब्यूटी आई विटनेस. जो ब्यूटी मैंने देखी उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको संभाल के अपने पास हमेशा रखने के लिए. Now, select the option that identifies the error in a museum plaque and supplies the correction for the same. Museum है, वहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, देखते हैं. These building inaugurated on 29th March 1954 was a former residence of a महाराजा. मतलब ये जो बिल्डिंगें हैं यहाँ पे, ये जो इनाग्रेशन की डेट दी गई है was a former resident, मतलब वो महाराजा थे कोई, वो वहाँ पर रहा करते थे. Error is these, correction is this. Error is building, correction is buildings, on, at, of, by. Now, these, this. अब यहाँ पे these दिया है, these, तो यहाँ पे this भी जा सकता है क्योंकि building है. और यहाँ पे अगर हम buildings कर दें तो यहाँ पे these भी करेक्ट है. ये दो ऑप्शन आपको कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, राइट. अब इस पे हम आते हैं, पहले बाकी के दो ऑप्शंस देखते हैं. ऑन, एट, इनाग्रेटेड, क्योंकि डेट दी है तो तब वहाँ पे ऑन ही लगता है. एट इज़ फॉर अ प्रिसाइज टाइम, लाइक यू हैव टू कम एट द पार्टी एट 6 o'clock, दैट इज़ प्रिसाइज. तो यहाँ पे एट तो होगा नहीं. देन इज़ फॉर्मर रेसिडेंस ऑफ, नहीं किसी का घर, तो दिस इज़ द रेसिडेंस ऑफ करके हम यूज़ करते हैं. बाय नहीं लगता है. बाय तो होता है किसी से, तो हम ऐसे थोड़ी कहते हैं ये उससे घर है. हम क्या कहते हैं? ये उसका घर है. ऑफ इज़ यूज्ड फॉर पॉसेसिवनेस, तो यहाँ पे ऑफ ही जाएगा. ऑन भी करेक्ट है. अब ए बी पे आते हैं. दीज, दिस, बिल्डिंग, बिल्डिंग्स. अब क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर डेट दी गई है, पहला हिंट ये. दूसरा हिंट, क्योंकि अब देखो पहली बात कि कोई एक पर्टिकुलर डेट दी गई है, उस दिन इसका इनाग्रेशन हुआ था, तो ये तो जाहिर सी बात है कोई एक ही चीज़ होगी. लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, वॉज अ फॉर्मर रेसिडेंस ऑफ अ महाराजा, तो 2-4 बिल्डिंगें तो उनका घर हो नहीं सकती है. घर मतलब रेसिडेंस कैन नॉट बी स्पेसिफिकली अ हाउस, बट वो कुछ भी हो सकता है, कोई महल भी हो सकता है. लेकिन द मेन थिंग हियर इज़ कि वो वहाँ पे वो रहते थे, तो हम ऐसा तो थोड़ी बोल सकते हैं कि ये सारी बिल्डिंगें हैं, यहाँ पे वो रहा करते थे. देयर इज़ अ पर्टिकुलर बिल्डिंग, देयर इज़ अ पर्टिकुलर प्लेस और अ होम, हाउस, वट एवर, जहाँ पे वो रहते थे. तो यहाँ पे द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट विल गो इज़ this building inaugurated on 20th March 1954 was a formal residence of a Maharaja. I hope it is clear. Still, if there is any doubt, I'll explain it again. Do comment below. Then, the next question is fill in the blank with the correct option to complete the sentence below. You must have got good news. I could. Again, could दिया है, model है, तो क्या जाएगा? First form of the verb. So, the option will be A here. Read the conversation between a lawyer and his client. Complete the sentence by reporting the lawyer's reply correctly. तो क्लाइंट क्या कहता है कि आई एम वरिड, दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड केस, मतलब बहुत चिंता में है क्योंकि जो केस है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है. तो लॉयर क्या कहता है कि डोंट वरी, चिंता मत करो. आई हैव नेवर लॉस्ट अ केस इन माई लाइफ, मैंने कभी ज़िंदगी में कोई केस नहीं हारा है. अब देखते हैं, नरेशन में आपका हर एक वर्ड सही होना चाहिए, हर एक वर्ड, ठीक है.
तभी आपको 1 मार्क मिलेंगे पूरे. हाफ नंबर का यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं होता, गलत तो गलत, सही तो सही. तो देखिए, द क्लाइंट वॉज वरीड एज इट वॉज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड केस बट हिज लॉयर टोल्ड हिम. मतलब कि हमें यहाँ से ये पूरा सेंटेंस जो है उसे हमें इनडायरेक्ट में करना है. टोल्ड हिम, डोंट वरी, आप इसको 2 में ब्रेक करके डोंट वरी. अब डोंट वरी को हम लिखेंगे नॉट टू वरी. ये इम्परेटिव सेंटेंस है. फाइन. सिंस, अब यहाँ पे आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं. टोल्ड हिम नॉट टू वरी एंड बिकॉज, सिंस कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं. सो नॉट टू वरी, सिंस आई विल चेंज इनटू ही, have will change into had, never lost a case and my will changed into his. These 4 changes will be made. So the client was worried as it was a very complicated case but his lawyer told him not to worry because, या as करिएगा वो ज़्यादा appropriate होगा, as he had never lost a case in his life. Fill in the blank by choosing the correct option to complete the text message below. Text message है, let's meet another day since neither Kavi nor Samantha free today as they have tennis practice. neither nor वाले सेंटेंस में हम हमेशा क्या देखते हैं, जो हमारा इधर सेकंड सब्जेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 सब्जेक्ट है तो हम ये वाला सब्जेक्ट देखते हैं और इसके साथ जाएगा आपका इस. समंथा वर नहीं होगा, आर तो बिल्कुल ही नहीं होगा. समंथा बी फ्री टुडे, ये भी नहीं जाएगा. सो द लास्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट, दैट इज. सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन to complete the narration. So we'll jump directly on the question because you can read it. I have already read it, so I know what's in there. But the main thing here is कि हमें इसे narration में करना है and यहाँ पे the line that is written probably by tomorrow. तो यहीं पे वो सेंटेंस दी है probably fix the car by. तो मीन्स हमें इस tomorrow को इन चारों ऑप्शंस में से सेलेक्ट करना है, कौन सा जाएगा. तो अब हम टुमारो को किस में चेंज करते हैं, द नेक्स्ट डे में. तो यहाँ पे यही ऑप्शन करेक्ट होगा. आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन एडवर्टीजमेंट एंड सप्लाई द करेक्शन. लुकिंग टू बाय अ गिटार, ये बहुत ही थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है. क्या एरर है यहाँ पे. लुकिंग टू बाय अ गिटार, द ब्रांड न्यू गिटार इज़ फॉर सेल. यहाँ पे द नहीं होगा, यहाँ पे होगा आपका क्यों होगा, क्योंकि हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर गिटार. जब आप कोई एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं तो वहाँ पे क्या लिखा होता है कि एक गिटार सेल पे है, ना कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर गिटार विच वी हैड ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट. दा कहाँ पे लगता है, इट इज़ अ डेफिनेट आर्टिकल. लेकिन यहाँ पे कोई डेफिनेट चीज़ है नहीं, यहाँ पे एक गिटार है जो कि बेचने के लिए है. तो यहाँ पे जाएगा अ. ठीक है, तो अ ब्रांड न्यू गिटार इज़ फॉर सेल. ऋषि आस्क्ड अली द क्वेश्चन गिवन बिलो. रिपोर्ट ऋषिज क्वेश्चन. बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं सो ऑलवेज स्टार्टेड विथ ऋषि आस्क्ड अली ऐसे करके. फिर वाई दिया है तो वाई वाला सेंटेंस है तो वाई से, या इफ़ या वेदर है तो उससे. हमेशा ऐसे स्टार्ट करना है, आपको डायरेक्टली नहीं करना है. ठीक है, अगर डायरेक्टली नहीं भी करना होगा फिर भी आपने किया होगा तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे. लेकिन अगर आपको ऋषि आस्क्ड अली आपने स्किप कर दिया और वो लिखना होगा तो आपके मार्क्स हो सकता है कट जाए. तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे. ऋषि आस्क्ड अली कुड यू, तो इफ़ ही कुड गिव, यहाँ जो हमारा मी होगा वो चेंज हो जाएगा हिम में. सम एडवाइस ऑन हाउ ही कुड बी अ बेटर कैप्टन. अब अगर आपको नरेशन में कोई भी डिफ़िकल्टी है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं. आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो एक्सप्लेनिंग द रूल्स फॉर नरेशन सिंस इट इज़ अ प्रोमिनेंट टॉपिक इन ग्रामर इन क्लास 10th. So this was all, these 12 questions. Tell me if you guessed all correctly, all 12. Thank you and keep learning.